Hello everyone, this is Siddharth Mehta, mentor at Career Launcher Bhilai, and CLAD 25 results are out. ALET 25 results are out, and I'm 100% sure that you must have watched videos of all the toppers who have done well in the exam. आज बट हम कुछ अलग करने वाले हैं. Today I have a special guest with me, और आज हम उनकी बात सुनने वाले. They are the mentors, they are the ones who have guided the All India Rank 2 and All India Rank 3 in the CLAT exam, and I have a privilege here to have two of the best mentors for CLAT across India that anyone can find. Welcome Manoj Davrani sir, mentor to Anirudh, who has secured All India Rank 2 in the CLAT exam, and Priyanka Singh ma'am, uh, who is mentor to Ananya, who has secured All India Rank 3 in the CLAT exam. So without wasting time, I will welcome both of you. Thank Thank you, you, sir. Siddharth. Thank Thank you you. so much. Thank you. Yes. So before we start, uh, just very briefly, thoda sa हमारे audience के लिए, if you can give uh, information about your background, कब से आप mentoring कर रहे हैं, how long you have been associated with Career Launcher. Maybe we can start with Priyanka ma'am. राइट सो हूँ तो मैं एक्चुअली मनोज सर के शहर ग्वालियर से, बट अभी करियर लॉन्चर रायपुर के साथ एसोसिएटेड हूँ लास्ट 19 years. आई थिंक विल बी कंप्लीटिंग सीएल रायपुर इज गोइंग टू कंप्लीट 20 years next year. So from 2005, I've been associated with CL, and like preparing for law exams. I started in 2007, and 2008 CLAT happened. So you can say I've seen CLAT from the baby steps. I've seen that paper, taking shapes. So I think I could say I'm as old as CLAT in terms of experience. So I've seen a lot of papers, seen what kind of unpredictable papers होते हैं, and I think it's been a quite a journey over the last few years. Yeah. Right, Manoj sir. I think a little younger than Priyanka ma'am in CLAT journey. The association with CL, I think I am with CL since 2005, I would say. Initial journeys with CL was more in the lines of management test, but yes, with CLAT prep, I would say that CLAT preparation started from 2010 onwards. I would say Gwalior mein we are there since 2012. So Almighty's blessing for the last 12 years, we've done great in Gwalior. Agar AIR 2 is like a very new thing, but coming from this Gwalior, we have ranks like AIR 2, 33, 13, 17. तो ग्वालियर ने काफी ग्वालियर ने अपने आप में काफी माहौल बनाया है क्लैट में पैन इंडिया. So that is what the journey is all about. CLAT, I've seen a couple of changes effective 2010 onwards to 2024. I think we all are the witness to the journey. We all are the witness to weirdness also. कि CLAT कैसे कैसे अपनी journey लिया है, कैसे कैसे weirdness दिया है, वो पर discuss करेंगे. Right. So welcome Priyanka ma'am and Manoj sir. So Pleasure. I also have been associated with Career Launcher since 2010. Priyanka ma'am is of course the most experienced among us. तो क्लैट ने मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, क्लैट ने अपना फॉर्मेट बहुत चेंज किया है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. इट हैज चेंज्ड फ्रॉम offline to online, then again went to offline, and of course the paper pattern has also changed. So how you as a mentor you have adapted yourself. So maybe Manoj sir, you can start this time. I think CLAT का adaptation हम लोगों से ज्यादा I think बच्चों को परेशानी हुई है. What I somehow believe, because CLAT Obviously, has yeah. changed quite a few number of times, right? In fact, there have been a couple of promised change which were not as promised the way CLAT consortium said. I distinctly remember जब क्लैट कंसोर्शियम ने पैटर्न चेंज किया था, जब उन्होंने बोला था कि भाई हम लीगल का क्वेश्चन चेंज करें, नंबर ऑफ क्वेश्चन चेंज कर रहे हैं, तो बच्चों को काफी दिक्कतें आई. इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द सैंपल पेपर नेवर they never came down the way it was promised by consortium. I somehow feel. तो हम लोगों ने कैसे अडेप्ट किया, I'll tell you. We started giving more practice sessions. हम लोगों ने number of sessions बढ़ा दिए. Somehow coming from Gwalior, जो कि Hindi heartland है, if I say that we need to have more English sessions, more logical reasoning sessions. तो technically हमने sessions बढ़ा दिए, offline classes बढ़ा दी. Practically, I think Gwalior हम लोग आज भी बच्चों को एक दिन में 2 क्लास करा रहे हैं. तो it's like 10 classes a week we are giving. रेगुलर मॉक टेस्ट हम लोगों ने बढ़ा दिए हैं, तो नंबर ऑफ मॉक्स बढ़ गए हैं, प्रैक्टिस सेशंस बढ़ गए हैं, मॉक एनालिसिस लाइव बढ़ गया है. तो आई थिंक पहले क्या होता था कि सिंस पेपर वाज स्कैटर्ड इनटू 5 सेक्शंस, इंग्लिश का उतना वेटेज नहीं होता था. आप क्वांट पे भी डिपेंड कर सकते थे, जीके पे भी डिपेंड कर सकते थे.
the way CLAT pattern has changed, हमारा मेहनत बढ़ गया है. I would say that. I think हमारा engagement बढ़ गया है. Number of hours with students have increased. So वो area काफी बढ़ गया. तो adaptation in terms of faculty engagement has gone little higher. Second, the way CLAT questionnaires have also changed. So हमारा interaction in terms of questions have also gone very high. इतने direct questions अब नहीं आते हैं. So छोटे बच्चे हैं 11th 12th के, we're discussing very deep topics with them. So they require that degree of maturity. तो वो भी आपका एक discussion level बढ़ गया. आप 11वीं 12वीं के बच्चे के संग बहुत ही mature topic discuss करते हो. So interaction levels I think has gone very high in last, I would say, 7-8 years. So adding to that, जो आपने कहा कि academic terms पे बहुत सारा servicing बढ़ गया है. I think apart from the question paper, the entire process over the 17 years the CLAT has been conducted, every year there is something new. When it gone online, I think technical glitches, जब GNLU नहीं कराया तो OMR mix up हो गए. So I think paper देने के beyond जो भी process है वो भी काफी स्ट्रेसफुल होता जा रहा है. द वे वी हैव सीन दिस ईयर AR के क्वेश्चंस जिसमें काफी स्टूडेंट्स का टाइम वेस्ट हुआ. सो एंड लॉट ऑफ पीपल सेड कि हम मैथ्स नहीं कर पाए, हमारे कुछ ना कुछ पेपर छूट गया बिकॉज पेपर में वो एक आ गया था, एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो गया. ये जो प्रोसेस भी है बियॉन्ड क्लासेस, जो पेपर देने के बाद भी objections, we know every year there are objections being filed, so that is becoming also very stressful. और वो भी handle करना एक हमारा ही added domain बन गया है. Handle so many queries. And I think beyond the result, all the kids are special to us, but not everyone is able to make it to say NLU. So catering to them and then preparing them to look at the bigger picture, वो सब part भी आ जाता है. आई थिंक क्लैट का एक जो चैलेंजिंग पार्ट जो मुझे लगता है कि इसमें कोई भी स्किल ऐसी नहीं है जो टेंजिबली कोई देख सकता है कि इंप्रूव हो गई 7 to 10 days में. सो इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम एंड एंगेजमेंट इज वेरी हाई. प्रोसेस आफ्टर द एग्जाम में तो ऑफ कोर्स आई हैव फ्यू मोर थिंग्स टू डिस्कस, बट वी विल कम टू दैट. आप लोगों का ऑल इंडिया रैंक 2 और 3 आया, मतलब ऑब्वियसली you must have known that these kids are good, and they're beyond all India rank 2 and 3. I know that Gwalior and Raipur both have given wonderful results over the years also, and this year also, although our focus is mainly कि rank 2 आ गया, but I know that Priyanka ma'am आपके यहाँ पर 400 rank के अंडर में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं. मनोज सर आपके यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं ऐसे. So but then nevertheless what I wanted to ask is कि when these kids were preparing, did you ever expect कि कुछ इतना बड़ा धमाका हो सकता है? देखिए रैंक 2 तो आप नहीं एक्सपेक्ट करते हो. मेरे को लगता है कि रैंक 1 रैंक 2 ये ऐसी चीजें हैं जो somehow nobody can expect, because CLAT इतना एक सब्जेक्टिव लेवल का पेपर है जहाँ पे इंग्लिश का सब्जेक्टिविटी बहुत ज्यादा होता है सवालों में. You never expect this level. Yes, you expect that this child will do good, no doubt about it. You expect this, he might come in top 100 or probably he'll get into NLS. But 1-2 is honestly a dream come true. There's no question about it, I would say. Yeah, absolutely. I think single digit though, as mentors and I think as students also, it's very difficult to visualize कि single digit rank आएगा. But yes, हाँ, एक over the period of time student को देख के ये realize होता है कि हाँ, this is going to do something good, probably within 100 आ जाए, within 50 आ जाए. So I think that's icing on the cake. But rank single digit, I think it's once very 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 rare. And I think we've been fortunate enough that we have got such great ranks from the central region, from the Hindi heartland, as Manoj sir have said. So this is a pure Hindi belt, and this is a language paper. So we're getting good ranks from this region. So I think it's to all the viewers, all three of us are from Hindi-speaking belt of yes. India. Right, but then very interestingly, both of you pointed out something in which I will like to delve more deeper. You talked about that ये बच्चों को देख करके लगता है कि they will do well, and I'm sure it wasn't restricted to Ananya or Anirudh alone. किसी भी बैच में और किसी भी इंस्टीट्यूट में when we train students, at least there are 5 to 10 students on whom we think that yeah, these guys have good potential. What is that thing that you believe that you can see, वो spark क्या अलग चीज रहती जो आपको ये believe करवाती कि हाँ these are the students who can do well in the exams over the years? क्या रहा है आपका experience? If 2-3 things you can point out कि ऐसा कुछ अलग रहता है toppers में, अच्छा करेंगे उन students में. Sir, I think एक तो बहुत self assured होते हैं,
अब मैं जितने भी बच्चे आई थिंक अच्छे रैंक लेते हैं बहुत जेन्युइन डाउट्स लेकर आते हैं. दे वोंट बी एंड दे वोंट बी लाइक कमिंग टू यू विद each of their problem. They'll be coming to you with their very relevant doubts. बहुत पिन पॉइंट होते हैं, बहुत स्पेसिफिक होते हैं, क्योंकि जो एक नॉर्मल बच्चा होगा वो हर चीज पे आपके सामने एक डाउट लेके खड़ा होगा. ये वो बच्चे हैं जो बहुत स्पेसिफिक हैं, बहुत क्लियर है कि कहाँ इनको प्रॉब्लम है और कहाँ इनको एक्चुअली फैकल्टी की अब हेल्प चाहिए. सो अनन्या की यदि हम बात करें तो आई थिंक उसका मेजर जो कंसर्न एरिया था वो जीके था. So he's an exceptional reader throughout 9th 10th. वो काफी रीडिंग में है. That helped him. मतलब he was the one, if I remember, कोई भी मॉक उसका 15 मिनट पहले खत्म हो जाता था एंड वो हेड डाउन करके बैठा होता था और बाकी पीछे पूरे बच्चे वो फ्रंट सीट पे बैठ के एग्जाम देता था, पीछे बैठ के पूरी क्लास टेंशन में होती थी कि इसका पेपर खत्म हो गया. मतलब he has finished his paper and he's like head down and we are still struggling with the last 15 minutes. So he has been that way. And yes, I think there are a couple of more students. So we had one AIR 27 in ALET. Same thing. I think that girl was very specific. Things couldn't work out on CLAT, but then she did well in ALET. So I think self-assurance and very specific with their trouble areas. ये एक I think common चीज मैं देखती हूँ जो बच्चे अच्छा करते हैं. Sir, anything to add on this? I think yes, Priyanka is absolutely right. Second thing, apart from being self-assured, is the dedication and focus is very, very clean about writing CLAT. Their doubts, especially when they eliminate options, आपको पता पड़ जाता है कि बच्चा सोच रहा है. मतलब आप anybody who's getting ranks who's into top, forget about top 10, top 500 भी आप ले लीजिए, तो आपको उसके डाउट से पता पड़ जाता है कि वो सोचना चालू कर रहा है. बिकॉज द नेचर ऑफ CLAT पेपर, द काइंड ऑफ पैसेजेस वी हैव, इनफैक्ट आई मीन kudos to CL mocks, the way that we get variations in a mock. तो अगर हमारे मॉक में बच्चा सोच रहा है, ऑप्शंस एलिमिनेट कर रहा है, तो यू गेट अ फील कि यार ये दिस गाय कैन एक्चुअली गेट इनटू इट. दिस इज द फर्स्ट थिंग. सेकंड, somehow I realize कि इनकी क्लास ओबीडियंसी बहुत ज्यादा होती है. दे डोंट मिस क्लासेस. ये बच्चे क्लास में आते हैं लगातार, राइट? when they get mocks, इनके doubts की list होती है. I have kids, Anirudh rank 2, इससे पहले अनुग्रह था, वो तो 11th में AIR 17 लाया था यार. मतलब 12th में ही again took CLAT and he got grade. तो there's a pattern with these kids. They're very organized. इनके doubts आपको note करे हुए मिलेंगे पेपर में कि इस mock में ये doubts हैं. When they clean it, they write it. So that organized approach and the way forward approach कि भाई doubts clear करवाने हैं, और very right, then they never ask generalized question. They ask very specific question. एक बहुत ही यूनिक क्वालिटी है ऑल दी रैंक होल्डर्स में. सेकंड, इन इनिशियल डेज दे फॉलो अस. समहाउ ग्वालियर में मैंने देखा है कि दे फॉलो अस ब्लाइंडली. मतलब मेरे को याद है कि शुरू के दिनों में बीट अनिरुद्ध और पीछे अनुग्रह को देखूं, तो व्हेन आई टोल्ड देम टू रीड न्यूज़पेपर्स, दे डिलिजेंटली डिड इट फॉर अ लॉन्ग टाइम. वो अंडरलाइन करके लेके आते थे बेचारे बच्चे. क्वांट में व्हेन दे टोल्ड देम वी डू दिस, तो वो प्रॉपर टॉपिक के डाउट्स लेके आते थे. तो they were like very clear. They were not looking for validation कि सर सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं. नॉर्मली बच्चा क्या बहुत सोर्सेस से देखता है, तो वो समझता नहीं है. जैसे क्लैट में क्वांट के सेट्स आते हैं, लेकिन आप वो बाद में सॉल्व करेंगे ना, पहले तो आपको कोर टॉपिक्स आने चाहिए. तो ये बच्चे शुरू में सवाल नहीं उठाते थे. एक ह्यूमिलिटी, एक एक्सेप्टेंस टू टीचिंग है, मैंने नोटिस किया है, और वो बहुत काम करती है. I'll agree with that. मैं भी यही वाला पॉइंट प्रियंका मैम ऐड कर रहा था. मैंने इन स्टूडेंट्स में ये वाली क्वालिटी खास देखी, दैट दे ब्लाइंडली ट्रस्ट. I mean, if they come to us for suggestion and if we give any suggestion, they follow it. They implement And it. Yes. another thing is वो डेली कुछ ना कुछ करते. They don't have that कि आज 3 दिन से पढ़ा नहीं वाला type of thing. Anything that day to day basis में वो करते ही है. So this is something which is important. Yeah, Priyanka ma'am, you were saying something and I said. I was just adding to that only कि मतलब ये बच्चे to the T follow करते हैं. And I think शायद बिकॉज इनका उसी कारण से इनका फाउंडेशन इतना स्ट्रॉन्ग बन जाता है. बिकॉज हम जो भी इनको इनपुट्स दे रहे हैं वो बेस्ड ऑन आवर एक्सपीरियंस है. दैट हाउ डू यू नेविगेट एंड हाउ कहाँ से शुरू करो, या क्या सोर्सेज यूज करो, या आप क्रोनोलॉजी क्या रखो किसी भी सब्जेक्ट में. और ये जज नहीं करते कि ये सही है कि गलत है. हमने जो कहा उसको फॉलो किया, उस पर वापस क्वेश्चन नहीं उठाते कि कर ले क्या, ये करे नहीं करे. इस तरह जो जीके में आते हैं क्वेश्चन ऐसे आते हैं, इसको करें क्या, हमारा तो यही आंसर था जो भी है वो करो. सो आई थिंक द बेस्ट क्वालिटी विद दीज स्टूडेंट्स इज दैट कि वो जो सर का एक्सेप्टेंस है कि व्हेन अ मेंटर इज सेइंग समथिंग, एक्सेप्टिंग दैट विद अ होल हार्ट.
and then implementation on that. राइट मैम, मेरे यहाँ से पिछले सालों में ऑल इंडिया रैंक 5, 7, 12 ऐसे आए हैं। मैंने एक चीज देखी कि ये जो स्टूडेंट्स होते हैं इनका क्लास 12 में भी 95%, 96%, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। आई मीन द क्वालिटी आई एम श्योर इज दैट कि they are very disciplined of course, and they follow their mentors advice rather than questioning. So every time we see कि students 2 दिन न्यूज़पेपर पढ़ के सोचते हैं कि इम्प्रूवमेंट हो जाए, that doesn't happen. Perhaps the biggest quality is patience शायद इनमें बहुत ज्यादा है as compared to एक normal student जो प्रिपरेशन कर रहा होता है। Anyways, but हमारे लिए तो सब स्टूडेंट्स स्पेशल होते हैं, because at the end of the day it is our responsibility to ensure that we help them in to build their career. And when the results come out that day, I think result वाला जो दिन होता है एक mentor के लिए वो अच्छा दिन भी होता है, बुरा दिन भी होता है। I think you will agree to that. On one hand, we have good results, so we want to be happy and celebrate with the students who have done well. But a large chunk of these students somehow they are not able to perform well in the exam, and we completely empathize with them. So how do you balance that kind of thing on the day of result? सर आई थिंक ये बहुत यहाँ पे मैं ये कहूंगी कि एक लिटरली एक मदरली रोल प्ले करना पड़ता है, एटलीस्ट मैं अपने उसमें बोल सकती हूँ कि, और ये बहुत ही मिक्स्ड फीलिंग होती है एट टाइम्स। यू रियली विद रैंक लाइक दिस यू रियली वांट टू स्क्रीम ऑन द टॉप ऑफ योर लंग्स, you want to go all out and say yes, something big has been achieved. बट देन आई थिंक एक बच्चे के पीछे 10 बच्चा ऐसा जिसको फोन करके, जो फोन कर रहा है आपको, जो आप में एक सुकून ढूंढ रहा है कि मुझे, हाँ, कि मुझे कुछ सूदिंग वर्ड से कुछ एम्पैथाइज करे, तो वो भी आपको साथ के साथ दोनों चीजें बैलेंस करनी होती है। आई थिंक दैट डे व्हेन द रिजल्ट केम, आई थिंक वी वर डूइंग द सेम थिंग टिल लाइक रात के 2-3 बजे तक सेम चीजें चल रही थी, चाहे व्हाट्सएप हो चाहे कॉल हो। बट यही चीजें हैं कि ठीक है, जो जिसका रिजल्ट आया वो सेलिब्रेट कर रहे हैं उसको, एंड जिसका नहीं आया आई थिंक उसकी हैंड होल्डिंग और इम्पोर्टेंट हो जाती है हमारे लिए एज मेंटर्स, कि हम उसको वहां पे एक कंसोल करें, ये बोले कि नहीं अभी और भी चीजें हैं। बट यस, इट्स अ tricky thing, and as mentors this becomes sometimes demanding also, but I think that's what we are here for, to balance both kind of kids. Yeah, very true, very true. In fact, here in Gwalior, and I'm sure everywhere we do, it is beyond mentorship now. I think we all know that the moment CLAT happens, then I mean the same day or probably the next day we get this response sheets. This is a typical pattern. तो कहीं ना कहीं अपने को पता होता है. So somehow what I believe is it is almost a fatherly role. ग्वालियर में हम लोग CLAT center में भी जाते हैं. We go to the CLAT center. We make sure all the admit cards are checked. तो बच्चे को जो वो हैंड होल्डिंग हम लोग करते हैं फ्रॉम द डे दे राइट क्लैट, रिजल्ट आना, फिर उसके बाद उनसे काउंसलिंग करना, ये एक अपने आप में एक फादरली ट्रीटमेंट इज मोर ऑफ अ पेरेंटल ट्रीटमेंट, आई वुड से दैट। जहां तक रैंक का सवाल है, ऑनेस्टली वी नेवर नो क्या रैंक आने वाली है, and it is very unfair to only treat only rank 1, rank 2, rank 3. I think it's a moral responsibility that we need to take care of every child whom we have taught. However, looking at this year's pattern, it was almost very troubling कि अगले दिन एलेट था, रात को आपको 11-12 बजे क्लैट का रिजल्ट आ रहा है। एक मन में सवाल भी था कि क्या सच में बच्चों को पता है कि ये रिजल्ट आ चुका है। मजे की बात थी, बच्चे ही हमें बता रहे थे कि सर आ गया है। When we got this, that time was really troubling. I completely agree with that. But yes, it's a moral responsibility. So I distinctly remember, मैं शायद 4-4:30 बजे सुबह सोया हूँ, क्योंकि रात को रिजल्ट आया था. We kept talking to everybody, and tomorrow, the very next day it was ALET. That was very challenging. We have to console them कि कोई बात नहीं बेटा. The next day there's an ALET. Of course, there's a rank holder, which is an amazing thing. I mean, that's a dream come true. Yes, like Priyanka ma'am said, I wanted to shout at the top of my voice, but yes, at the same time, आप उसको सेलिब्रेट ग्रुप्स में करते हो, उससे पहले सोचते हो यार कि बहुत सारे बच्चे ऐसे जो रैंक नहीं लाए हैं, उनके दिल पे क्या बीत रही होगी। एलेट का रिजल्ट स्टैट का एग्जाम होने तक होल्ड करके रखा, बिकॉज जो बच्चा स्टैट दे रहा है, मैं नहीं चाहती थी ठीक है किसी बच्चे का अच्छा रिजल्ट है, मैंने कहा स्टैट फिनिश हो जाए, देन आई विल पुट एलेट का रिजल्ट, कांग्रेचुलेटिंग दैट गर्ल। तो ये भी सेंसिटिविटी कहीं बैलेंस करनी पड़ती है हमें। बहुत मतलब ऑनेस्टली हम लोगों ने अपने ग्रुप्स में we did not publish Anirudh's result that night. I was conscious enough
that let's not disturb the existing kid. कहीं ना कहीं बच्चों में comparison आ जाता है, I somehow believe. But I think हर बच्चा बराबर है. It's the matter of those 2 hours, right? That child was brilliant. हाँ, अच्छी बात ये थी कि when I told the result came, I distinctly remember अनिरुद्ध की मदर का मेरे पास कॉल आया कि सर I'm so happy, पहले मैं आपको थैंक्स करना चाहती हूँ. तो वो तो आपका दिन बन जाता है that day, that the mother calls you and say कि सर thank you so much, it is all because of you. Because the story went this way. आप काफी सारे वीडियोस में भी देखेंगे कि ये बच्चा 11th में भी रैंक 359 359 लेके आया था. तो दैट डे जैसे अपन बोलते हैं, मैंने इसके मुंह से मेरे निकल गया था कि बेटा अगले साल अपने को टॉप में आना है. टॉप बोले तो सिंगल डिजिट लेके आनी है. तो ये बच्चा बोलता है हाँ सर लेके आऊंगा मैं. और आई थिंक वो मुंह की बात सच हो गई लास्ट ईयर की. रैंक 2 ले ही आया. तो सर तो हम एक तो चैलेंज ये हमने डिस्कस किया कि बैलेंसिंग द good and the bad on the day of the result. Right. There are other few challenges also, I believe, as a mentors that we are facing. I think one is beyond our control, and one or two that I will like to discuss are under our control. So पहले कौन सा डिस्कस करें, beyond our control वाला कि जो हम कंट्रोल कर सकते बट कर नहीं पा रहे हैं वो? Something which is in our control. Something which is in our control. Right, चलो तो पहले ये वाला डिस्कस करते हैं. So as a mentor, I am sure that during the phase of preparation and after the phase, after the results come out, अब इस साल तो खास करके when the results came out, there was a new dimension of pressure जो mentors के ऊपर आया. So पहले हम बात करते हैं during the preparation. I feel that students they are always in lookout for new source of information, and in the world of social media, when there are so many avenues available, there are people who call themselves as bhaiyas, and I'm not saying that they are not doing good job. They must be doing good job, of course. That's why people go to them, right? But then there are so many people who might know CLAT, people who might not know CLAT, guiding students, and students going to different resources. How to manage this? कैसे मैनेज करते हैं? और ये बड़ा सीरियस प्रॉब्लम है, बिकॉज मैं बार बार स्टूडेंट्स को कहता हूं कि आई मीन इट्स पॉइंटलेस दैट यू ट्राई टू collect all the resources and you get confused over it. It's like watching more YouTube videos and getting confused over the things. Yeah, so anyone can start. Maybe Manoj sir, you can start. एक चीज अभी रिसेंटली हुआ कि अभी आई थिंक राइट आफ्टर क्लैट जब एआर का इशू आया, कुछ एक यूट्यूब पे आया कि रीक्लैट का एक स्टार्ट हुआ प्रोपेगेंडा, एंड समबडी वाज क्लेमिंग ऑन यूट्यूब कि क्लैट 3 बार कैटेगोरिकली, शायद मुझे साल भी याद है 2012, 2016 और 1-2 साल और मेंशन किया गया था उस वीडियो में कि इन सालों में क्लैट दोबारा हुआ था. ना हम लोगों को जिनको पूरा एक्सपीरियंस है, हमें पता है कि 2009 के अलावा कभी रीक्लैट नहीं हुआ है, व्हाटएवर बी द रीजन, या पेपर कैसा भी हुआ है. सो आई थिंक इस तरह के जो इंफॉर्मेशन सोर्सेज होते हैं जहाँ पे ऑथेंटिसिटी नहीं है, वैलिडिटी नहीं है, शायद उनका एक्सपीरियंस ही नहीं है इतना, एंड दे गो ऑन टू अ पब्लिक प्लेटफॉर्म एंड मेक सच काइंड ऑफ क्लेम्स जो एक्चुअली बच्चे को बहुत कंफ्यूज कर देता है. और यदि वो हमसे आके पूछ रहा है तो हम बता रहे हैं, पर जिस बच्चे के पास कोई नहीं है ऐसा मेंटर, वो एक्चुअली बहुत कंफ्यूज हो जाता है, एंड देन दे एक्चुअली रिलाई ऑन सच काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन जो एक्चुअली ट्रू नहीं है. इनका ट्रू नहीं है. उसके अलावा आप अगर चेक करेंगे तो आई थिंक इंटरनेट में फिल्टर्स नहीं है, राइट? हर व्यक्ति ज्ञानी बनने को राजी है, मेरे को ऐसा लगता है, somehow I believe, right? In this age of social media, beyond social media, YouTube, I would say, आप किसी को भी मान लीजिए इस पूरे फील्ड में, तो हर व्यक्ति अपने हिसाब से ज्ञान देने की कोशिश कर रहा है. इनफैक्ट somehow I believe that couple of students who get into national universities, even they have become mentors on YouTube, right? Yeah, yes. मतलब मुझे लगता है कि देखो उन बच्चों की अचीवमेंट है, आई कंप्लीटली एग्री विद द फैक्ट, लेकिन हर व्यक्ति जो अचीव करता है वो मेंटर नहीं बन सकता. मेंटरिंग एक अलग आर्ट है, उसमें सेंसिटाइजेशन होता है कि आप क्या बोल रहे हैं, बिकॉज आपका एक्सपीरियंस आप जनरलाइज नहीं कर सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, राइट? सो आई थिंक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि बच्चों का ओवर एक्सपोज होना टुवर्ड्स द सोशल मीडिया, टुवर्ड्स फ्रीबीज हैपनिंग अक्रॉस द वर्ल्ड, राइट? आपको मैं छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ, राइट? मैं नाम नहीं लूंगा. जब भी थोड़े दिन पहले इशू हुआ था, जब इन्होंने बोला था कि व्हाट हैपेंड दिस बिफोर दिस एग्जाम कि आप पेपर में मार्क नहीं कर सकते हैं, राइट? एक सज्जन ने यूट्यूब में आके बोला कि आप है ना इन्विजिलेटर से पूछिएगा
क्या मैं मार्क कर लूं? आपको तकलीफ तो नहीं है? मतलब जस्ट इमेजिन, I mean, are you serious that you're coming on YouTube and guiding people that आप इन्विजिलेटर से पूछेगा. My kids came down to me and said कि सर फला वाले सर जो ऐसा बोल रहे थे. तो मैंने कहा लेट्स सी द वीडियो. आई सॉ दैट वीडियो. आफ्टर सम टाइम द वीडियो वाज डिलीटेड. बट अब सोचिए कि जिन्होंने देखा होगा और जिन्होंने हमसे कंसल्ट नहीं किया होगा, व्हाट वुड हैव हैपेंड? आप एक इशू को जबरदस्ती रेज कर रहे हैं, राइट? सो बहुत सारी इंफॉर्मेशन, द वे इट फ्लोज, आई समहाउ बिलीव दैट डेविएट्स अ स्टूडेंट. एग्जाम से 3 दिन पहले एवरी रैंडम गाय वाज कमिंग एंड टॉकिंग अबाउट दिस मार्किंग थिंग, व्हिच इज सो वियर्ड. और बहुत छोटी सी बात थी, उसको लोगों ने इन्फ्लेट कर दिया. इनफैक्ट ये हमेशा से होता रहा है, इतना बड़ा मुद्दा था ही नहीं है, राइट? अब जो फ्री मटेरियल पड़ा हुआ है, आप टेलीग्राम पे जाके देखिए, यूट्यूब से जाके देखिए, क्या ऑथेंटिसिटी है उसकी? क्या गारंटी कि वो जीके लेटेस्ट से जो बच्चा सॉल्व कर रहा है? मैन, हाउ मच टाइम द चाइल्ड इज वेस्टिंग फॉर ऑल ऑफ देम. आज के जमाने में जब आप किसी को आप फ्री में चाय भी नहीं पिलाते हैं सर, तो आप इतना बड़ा कंटेंट सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं बच्चों को सॉल्व करने के लिए, तो दिस कैन नॉट हैव all the benevolent intent. I'm sure that there is bound to be a commercial intent out of it. I think Siddharth, all three of us will agree, इसको ड्रिप मार्केटिंग कहते हैं कि आप कुछ भी डालते रहो ताकि व्यक्ति आपके पास किसी न किसी फॉर्म में आता रहे. तो मुझे लगता है कि this varied resources, varied source recommendations are a big problem. मैंने बहुत बच्चों को परेशान होते हुए देखा पर्सनली. ये तो है, कई जगह के मटेरियल अनयूजुअली टफ होते हैं, एंड देन दे किड्स कम टू अस कि दिस इज, इसका टफनेस लेवल बहुत ज्यादा है या ये बहुत डिफिकल्ट है, एंड वी ऑलवेज मेंटेन दैट स्टिक टू व्हाट इज द क्लैट का डिफिकल्टी लेवल. Do not do something which is unusually tough, or do not do something which is unusually easy. So I think वो बैलेंस रखने से वो बच्चे को डेविएट कर देता है, कंफ्यूज ज्यादा कर देता है. ये सब जो फ्रीबीज जो मनोज सर बात कर रहे हैं, आई थिंक ये पूरा जो गिमिक है, इट्स नॉट सर्विंग एनी गुड एक्चुअली. दैट्स व्हाट आई फील. आई थिंक प्रियंका, मुझे लगता है ऐसा दैट जैसे अपन क्रिकेट खेलते हैं, so all of us love to play a lot of cricket, but rarely we like to warm up and exercise before that. I mean, that's a simple example to analogy to understand. मॉक एक नशे की तरह बच्चों के सामने आता है कि सब एक रोज एक मॉक लगा रहे हैं. आप if you're writing mock every day, when are you analyzing? I mean, you got to sharpen your axe, at least for 6 days a week to use it on 7th day. अब इस तरह की चीजें जो फ्रीबीज अवेलेबल होती हैं, बच्चा एक्चुअली आप देखोगे तो पढ़ ही नहीं रहा है, वो टेस्ट लगा रहा है. तो अगर वो टेस्ट लगा रहा है, वो किस ऑथेंटिक सोर्स से लगा रहा है यही नहीं पता, वो टेस्ट एनालाइज ही नहीं कर रहा है. तो आई थिंक इफ यू राइटिंग 6 मॉक्स अ वीक, इट इज नथिंग बट अ गैम्बल. आई मीन, बिकॉज़ यू आर नॉट स्टडिंग. I think the content is important. अंग्रेजी आनी चाहिए before solving RC, vocabulary आनी चाहिए before solving it, figure of speech पता होना चाहिए, quant के concept पता होने चाहिए, legal knowledge पता होना चाहिए, analytical reasoning, logical reasoning. Siddharth, you run CR Nuggets, CR Nuggets, you know how it works. There are strong concept of critical reasoning. तो अगर आप बिना समझे लगाए mock करे जा रहे हो, तो I think the progress is bound to be hindered. बहुत सारे बच्चे इन चीजों से परेशान होते हैं. I somehow believe. But I still believe that राइट. एक ये फ्रीबीज का एक डाउनसाइड और ज्यादा जो दिखने को मिलता है, फ्रीबीज एंड आई गेट टू अ पर्टिकुलर प्लेस एंड टेक वन मॉक just because I have that nasha of writing one more mock. Suddenly I get a good rank, and suddenly I become a student of that institute also, and that is another challenge that as a mentor I want to discuss with you. All India rank 2, आपका 2-year classroom program student. Priyanka ma'am, All India rank 3, you are 2-year classroom program student. I'm sure that they would have referred to other resources. I'm not saying that they have not they must have not referred to. And ये तो भारतीय सभ्यता है कि जो मनोज सर ने भी मुझे बात बोली थी कि यार ठीक है, मतलब थैंक यू बोलना तो हमारी आदत है, कोई हमें हेल्प किया है तो हम थैंक यू बोलेंगे उसे, तो वो थैंक यू बोल रहा है बच्चा. बट एज अ मेंटर, isn't it this our responsibility to be morally right? आई मीन फ्रीबीज मिल रहे हैं, बच्चे ने लिया बिकॉज वो उसको उसके फायदे के लिए लगा, विच इज नथिंग रॉन्ग इन इट, कुछ गलत नहीं है. तो व्हाट आर योर रिव्यूज ऑन दिस? द एंटायर लास्ट वीक आई एम श्योर यू गाइज मस्ट हैव अंडर pressure of I mean this is a unique kind of pressure that आपका स्टूडेंट का, I mean he must have taken resources from other sources, I'm not denying that, but what has been the experience like? Please tell me, sir. I might sound little blunt and aggressive. जैसे हर आई थिंक क्लैट के अलावा जेई में भी होता है, मेडिकल में भी होता है, दैट the same kid has lot of people who take credit of his success. It's fine. ठीक है, किसी का टेस्ट सीरीज लिया है, किसी कुछ लिया है, किसी कुछ लिया है, कोई इसमें डाउट नहीं है सर, होना चाहिए, कोई दिक्कत वाला विषय नहीं.
The problem is आप आप बच्चे को मेंटरिंग की जगह इफ यू मेकिंग इट अ रिजल्ट कलेक्टिंग एक्टिविटी, आई थिंक वो बहुत ही सवालिया है. ठीक है. Right. फॉर एग्जाम्पल if for that matter आप किसी को मॉक करवा रहे हैं, सिंगल मॉक करवा दिया, you get to know that who is the brightest child, right? You offer all the bright kids some free of cost online some random mentoring, right? जो हम YouTube पे वैसे ही फ्री में दे रहे हैं लोग. ठीक है. तो उसको Right. आपने एक ऑर्गेनाइज मेंटरिंग का नाम दे दिया जो ऑलरेडी फ्री में अवेलेबल है, राइट? आपने उसको किसी बैच का नाम दे दिया, and then you suddenly realize that कि उस बैच को आपने थोड़ा ओवरलोड कर दिया, and when the result comes good you claim that guy, if the result doesn't come you forget that guy. तो ये तो एक रिजल्ट कलेक्टिंग एक्टिविटी है ये. दिस इज नॉट सम बेनेवोलेंट एक्टिविटी और एन ऑल्ट्रुइज्म व्हिच इज हैपनिंग, राइट? ये ऑल्ट्रुइस्टिक मोटिव नहीं है, ये प्योरली स्मार्ट रिजल्ट कलेक्टिंग एक्टिविटी है. समहाउ आई बिलीव अगर आप क्लास में बच्चे को पढ़ा रहे हैं, आप बच्चे की वीकनेस जानते हैं और आप बच्चे से डिस्कस कर रहे हैं मॉक्स, आप उसके कंटेंट की बातें कर रहे हैं, देन इट मेक्स सेंस. बट आई समहाउ बिलीव दैट ये चीज, देखिए बहुत अच्छा बच्चा ना वो वैसे भी निकाल लेता है, मैं आपको सच बता रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे बच्चे इस ट्रैप में फंस के अपनी मेन स्टडी से दूर हो जाते हैं. और इट इज नॉट, आई थिंक इट डजंट अप्लाई ओनली टू क्लैट, इट अप्लाइज टू एवरी सॉर्ट ऑफ प्रिपरेशन. एक सिंगल माइंडेड फोकस इज एक्सट्रीमली रिक्वायर्ड फॉर टू क्रैक एनी एग्जाम. आई समहाउ बिलीव दैट आज तक अपन कैट की पढ़ाई कराते हैं, क्लैट कराते हैं, आईपी मैट कराते हैं. आई थिंक वी ऑल द टेस्टिमनी, हमारे यहाँ वही बच्चा निकला है जो फोकस्ड रहा है, जो जो पढ़ता है, आई थिंक, राइट? और जो जितना डेविएटेड रहा है उसमें आपके फेलियर के चांसेस आई थिंक दे वेरी हाई, मुझे लगता है. So this is what I strongly believe. I completely Right. agree Priyanka with you ma'am? because yeah, because as you said कि हम 2 साल में उस बच्चे का वीकनेस, टेम्परामेंट, उसका स्ट्रेंथ, आई थिंक साल में 2-3 बार उनके पेरेंट्स से मिलना, एक आई थिंक स्कूल का बच्चा है तो उसके बियॉन्ड भी चैलेंजेस होते हैं उसके साथ, Right. अपार्ट Right. फ्रॉम क्लाट 11th है या एक्स्ट्रा करिकुलर, वो सब एक एक आई थिंक इट्स अ ब्रॉड, आप बोल सकते हो एक बहुत ब्रॉड डोमेन हो जाता है. It goes beyond those 5 subjects. Yeah. So that is what is happening at the centers. That's not happening in terms of किसी online class में जहाँ one way communication चल रहा है. So mentoring is much more beyond. It's no longer only teaching, and that's what happens with these kids. And Siddharth and Priyanka, you would buy this fact, अपन लोग क्लैट के पेपर खुद सॉल्व करते हैं. Yeah. कितना अपन ऑनलाइन सपोर्ट कर सकते हैं सर, आपको बैठ के पेपर को सॉल्व. एवरी चाइल्ड हैज अ डिफरेंट प्रॉब्लम, एवरी ऑप्शन एलिमिनेशन इज डिफरेंट प्रॉब्लम. आप कैसे, मतलब मैं फिजिकली आई लॉजिस्टिकली बिलीव नहीं कर सकता that I can solve entire country's problem like this. One single child takes so many hours. एक घंटों की mentoring होती है, right? उस हर बच्चे की प्रॉब्लम अलग, किसी का इंग्लिश अच्छा है, किसी का लॉजिकल अच्छा है, किसी का ऑप्शन एलिमिनेशन डिफरेंट है. This generalized solution doesn't work. This is nothing but a result collecting activity. जो successful हो जाए उसको आप claim कर लो, जो successful नहीं हो जाए उसे भूल जाओ. And then you keep on saying that you're the great. I somehow believe, I might sound blunt, but with all due respect to No, all I teachers, think all respect. I think it is perfectly fine. You are giving your opinions and we are discussing as a mentor what all challenges we are facing. So yeah, definitely it may sound blunt, but then that's what you believe. तो बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई problem नहीं है. इसमें किसी की काबिलियत पे सवाल नहीं है, नो डाउट अबाउट इट. बट आई थिंक हमको अपनी काबिलियत अच्छे कामों के लिए यूज करनी चाहिए, ना कि गुमराह करने के लिए. I think कि morally as a mentors मुझे ऐसा लगता है कि it will be a more responsible act from any mentor if वो ट्रांसपेरेंसी के साथ थोड़ा सा रिजल्ट आ जाए. मतलब ठीक है, आई मीन ऑल इंडिया रैंक दिस माइट हैव टेकन दिस कोर्स, बट वो कोर्स को क्लियरली मेंशन हो, देखने वाले को समझ में आए कि अच्छा ये वाला कोर्स है. अगर मैं क्लासरूम बोल रहा हूँ कि कोई मेरे यहाँ पर क्लास आ रहा है, तो व्हाट डू आई मीन बाय क्लास, वेदर इट इज offline class of 1 hour, whether it is a video of 10 minutes, what is it? If I'm saying somebody has taken a test, then what does that test mean? Is it a topic test? Is it a one question test? Is it a quiz? So that kind of transparency, why I think, Manoj sir, it is important because, this is something which पेरेंट्स भी तो ये चीज को देख रहे हैं एंड फॉर नेक्स्ट कमिंग ईयर के एस्पिरेंट्स एंड पेरेंट्स है, दे माइट गेट कंफ्यूज्ड विद ऑल दैट इज हैपनिंग, राइट? सो how what do you think is the solution? According to me, I mean it is, and this is the second thing I said कि जो हमारे control में as a mentor, we can control our behavior and be morally responsible. But what are your take on this, Manoj sir and Priyanka ma'am? Very quickly, if we can discuss this. I think solution is subscribing to limited resources. That's one.
If you go deeper in this conversation, you realize कि आप किसी successful बच्चे से बात कीजिए, आपको अलग से उस बच्चे से बिठा के बात कीजिए. He'll actually say कि limited resource पे रखो, because उसको over the period of time realize हो जाता है कि this is what worked for him, right? Because if you see, everybody's journey has a couple of ups and downs, but when you start talking with the same student, he'll tell you कि क्या work किया था, क्या work नहीं किया था. I think the solution is yes, talking to the parents, a couple of parents teacher meeting. Making people aware this, what is more important, how does it work, right? uh, uh, Pros and cons kya hai, right? For example, too much of social media is predictable. आपको वही दिखाएगा जो वो देखना आप चाहते हो, right? आप एक सोर्स पे जाओगे, वो खुद ऑटोमेटिकली दूसरा सोर्स दिखा देगा, तीसरा सोर्स दिखा देगा, right? But simple example है Wikipedia. You keep clicking, you never reach the right source, you go somewhere else, right? So I think the student needs to be focused. That's the only solution. उसको अपने mentor पे trust करना पड़ेगा, उसको अपने institution पे trust करना पड़ेगा, कोई सी भी, हमारी हो किसी की भी हो, उसको अपने institution पे trust, अपने गुरु पे trust करना पड़ेगा. That is the reason I said every teacher is amazing, right? As long as he's ethical, he's subscribing to the values को, भाई हम पढ़ाते हैं यार, we need to be ethical in our conducts, we need to be moral in our conducts. That's more important, right? ठीक है, आप पढ़ाते हैं, क्रेडिट लीजिए. और एज यू सिद्धार्थ राइटली सेड कि हमारे बच्चे उस परंपरा को फॉलो कर रहे हैं कि अगर कोई सी हेल्प कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, तो नेचुरली थैंक्स कहेगा उसको. एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट इट्स एथिकली करेक्ट टू थैंक पीपल. बट द रिवर्स इज कि भाई किस लिए थैंक्स कर रहा है, सपोर्ट है, बट आप उसका ये मत बोलो यार कि यू वर द गाय बिहाइंड दैट. दिस इज द ब्लंटेस्ट वे एंड आई वुड से द मोस्ट एम्पैथेटिक वे टू टॉक. Yes, sir. But agree to that, I think students need to focus on quality rather than quantity. As limited resources, जिनसे वो comfortable हो जाए, I think कई बार जैसे मॉक्स कोई कहते हैं कि बच्चा आप अपने इंस्टीट्यूट के मॉक्स के साथ comfortable यदि हो चुका है, and then running after 10 different kind of mocks, जिसकी हर इंस्टीट्यूट की अपनी अलग आइडियोलॉजी है, so वो बच्चा confused हो जाएगा after writing mocks from 10 different sources. Stick to your institute mocks. आप मटेरियल सॉल्व कर रहे हैं, कहीं कर रहे हैं, बट नॉट एज एज इन रनिंग आफ्टर देम. आई थिंक वो कई बार क्या होता है, जैसे कलेक्शन के लिए ऑब्सेस्ड हो जाते हैं बच्चे कि मेरे पास कितना ज्यादा मटेरियल है, एंड कलेक्ट करना है बट सॉल्व नहीं करना. Fear of missing out. यस यस यस, ये मेरे पास नहीं है, ये नई चीज आई है, मैं इसको ले लूं, फिर चाहे वो लेके रखा है, दे आर नॉट सॉल्विंग इट. So I think एक वो भी turn हो रहा है, वो FOMO ना, for material is becoming a lot of FOMO in students. And I think they should trust the mentors, I feel. Yes. So the key message is mentors should be more morally responsible and students should trust mentors. Any mentor, I mean, आप जहां पर भी जा रहे हैं, I'm sure that all are good. उसमें कोई problem नहीं है. So एक problem जो challenge और जो मुझे as a mentor feel होता है, and this is beyond our control वाला, is the kind of surprise element या shock element that CLAT every time comes up with. And it is very difficult to prepare a student for the kind of things that happen in the exam. So how to deal with such things? How do we prepare students mentally कि भाई वहां तेरे साथ कुछ भी हो सकता है? मुझे याद है एक मतलब मैंने एक YouTube सेशन में कोई स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था कि क्या इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है लॉजिकल रीजनिंग में. शायद एनालिटिकल रीजनिंग का ही था या कुछ, तो मैंने बोला था बिल्कुल आई वोंट बी सरप्राइज्ड अगर वो एआर का क्वेश्चन दे दे तो. और ये मेरी इंटेलिजेंस नहीं थी मनोज सर, वो आ गया. आई एम नॉट ट्राइंग टू से कि मैं भैया प्रोफेटिक हूँ, ठीक है, वो मैंने बोल दिया था क्योंकि मुझे पता है वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है. आई मीन टू अ बिग सरप्राइज, CLAT consortium this year did not come out with a sample paper, a proper sample paper that we can call something like, right? So students ऐसे केस में काफी confused रहते हैं. Somehow I also believe that exams in India in general are not student centric. I mean, who will decide कि कल के दिन बच्चे का एक बहुत बड़ा एग्जाम है और रात के 11 बजे अपन रिजल्ट निकाल ले? I mean, come on. So how do you prepare students for such things? I think these exams, the conducting bodies are not keeping students in their mind. I think the first trauma happens inside the exam hall. जब वो क्वेश्चन आप कर रहे हो वो सॉल्व नहीं हो रहा, एंड बच्चा सोच रहा है सच अ इजी क्वेश्चन क्यों नहीं हो रहा. So वहां पे they are wasting time. Then the entire 1 week follow up of objections and everything, and then ये जो रात को 11 बजे रिजल्ट आना right before the next.
I think Siddharth, as far as the variation and surprises is concerned, I think let's give kudos to Career Launcher. Hmm. And you can quote me on that because I see all the mocks. Probably Career Launcher को Hmm. देखते हैं अपन स्केल के लोग हैं, but apart from that सबके अपन देखते हैं, right? जितने variations अपने mock में रहे हैं, I mean, it is commendable. I think आप इस साल का Career Launcher के result pan India देख लो. आई थिंक ये मेरी फीलिंग है बिकॉज मैं सारे मॉक सॉल्व करता हूँ पर्सनली, और मैं बाकियों के भी करता हूँ, देखता हूँ उनके, ऐसा नहीं कि नहीं देखता, सब समझ में सबने सब आता है, एज लॉन्ग एज वी टीचर्स वी लुक एट एवरीथिंग, राइट? Right. Yeah. तो द काइंड ऑफ सरप्राइजेस हमने मॉक्स में दिए हैं, अपना बच्चा इज वाज प्रिपेयर्ड फॉर एवरी सेट ऑफ अनसर्टेनिटी, एवरी सेट ऑफ सरप्राइज, आई एम टेलिंग यू, बिकॉज इफ यू रिमेंबर अपने एक मॉक में 150 क्वेश्चन भी थे, सो दैट पता नहीं क्या आएगा, हाँ, बहुत पहले मैंने वो भी दे दिया था कि मे वी दे टुक दिया दैट था। रिस्क, यू नो, राइट? Hmm. वी टुक एवरी डिग्री ऑफ रिस्क, हमने एकदम से रिएक्ट नहीं किया सैंपल पेपर से कि ऐसे ही बना देंगे, वी वर मेंटली प्रिपेयर्ड। अच्छा, इनफैक्ट पुराने एक्सपीरियंस भी काम आते हैं कि सैंपल पेपर्स नेवर सब्सक्राइब कभी टू रियल फॉलो टाइम नहीं होता, क्लास, कभी फॉलो नहीं राइट? होता। इफ यू रिमेंबर बाकी कोचिंग ने बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही छाप दिया, अपन लोगों ने रिएक्ट नहीं किया, दैट इज अ साइन ऑफ मैच्योरिटी इफ यू लुक एट इट, राइट? मॉक्स में वेरिएशन लास्ट डे तक चलते रहे, द डिफिकल्टी लेवल ऑफ मॉक्स वाज एट पार। इनफैक्ट अभी मैं आज स्लैट बच्चों को लिखवा के आया हूँ, तो एक दो बच्चे मेरी कार में बैठे थे, हम जा रहे थे, तो उन बच्चों के मुंह से निकल गया कि सर कुछ भी कहो, एग्जाम बहुत क्लोज होता है सीएल मॉक्स से, तो दैट इज यू नो अ साइन ऑफ यू नो अप्रिसिएशन फॉर अस कि यार अपने मॉक जो अपन सरप्राइज के लिए बच्चों को तैयार कर रहे हैं विद एवरी मॉक, कोई नहीं करता, इतनी मेहनत कोई नहीं करता, एंड दैट इज द रीजन हमारे मॉक फ्री में नहीं मिलते, क्योंकि मुझसे मेहनत करते हैं। राइट, वो फ्री में अवेलेबल नहीं। तो I got the मुझे लगता same है feedback for SLAT today क्योंकि हमारे मॉक्स में बहुत सारा मैथ्स आया SLAT मॉक्स में, हाँ, and आज SLAT के पेपर में there were 7 to 8 question of maths, and हाँ, students were saying कि this was our mocks were very close to the actual exam. yes, That happened today. So, Manoj sir, I can tell you that because I'm involved in the test ka making wala part, there are at least 2 reviews that happen, and all the planning for what will go in mock number. I mean, in the month of March, it was planned कि CDC 10 में किस तरीके का पैसेज जाएगा. So वो बहुत पहले से हुआ था, and for every mock there are at least 2 level of reviews. Of course, I'm not saying कि गलतियां नहीं हुई है, but I think अगर सिक्स सिग्मा देना होगा तो उस तरीके की गलती ही हुई है. ठीक है, वो so तो 150 very वाला big mistake. क्वेश्चन जो 150 क्वेश्चन वाला मूव था, स्टूडेंट्स हैव एक्चुअली कम बैक आफ्टर देयर मॉक, उन्होंने कहा इसमें हमारी स्पीड बढ़ गई क्योंकि Yeah, हमने 150 के हिसाब से सॉल्व किया। एंड right. टुवर्ड्स द एंड मेरे सेंटर पे तो कुछ बच्चों ने लास्ट ईयर के मुझसे 150 क्वेश्चंस वाले मॉक मांगे हैं कि हमको 150 की प्रैक्टिस करनी है। So I've given them spare copies जो लास्ट ईयर की थी, and they've solved 150 questions क्योंकि इससे स्पीड तेज हो जाती है। In fact, I might sound bad mouthing other institutes, but it's not the same. But I think जो हम मेहनत कर रहे हैं वो दिख रही थी. There were a couple of kids who came down to me and said कि सर फलां कोचिंग के mocks were very predictable कि options were very clear कि only है तो ऐसा होगा, दूसरा option ऐसा होगा. There was very predictability in answer. हमारे answer आसानी से solve नहीं हो रहे थे. The kids were supposed to read that. They were coming with to us for doubts. तो बहुत क्लियर था कि मेहनत हुई है मॉक्स में, और वो मेहनत आपको रंग लाई है। आप रिजल्ट देखिए, पैन इंडिया देख लीजिए आप। आई मीन अक्रॉस इंडिया इफ यू लुक एट करियर लॉन्चर रिजल्ट, क्लासरूम, आई रिपीट क्लासरूम कोचिंग, हमने जो पढ़ाया है, अब क्लेम तो पता नहीं 50 लोग करते हैं यार, लेकिन जो हमारी मेहनत क्लासरूम में है वो रिजल्ट्स में दिखी है, बीट क्लैट, बीट एलेट, लाउड एंड क्लियर दिखी है। एंड आई थिंक आप डीप डाउन बच्चे से पूछेंगे तो बोलेगा, मतलब ही विल बी वेरी क्लियर अबाउट इट, बिकॉज इफ ग्वालियर किड्स आर सेइंग, रायपुर किड्स आर सेइंग, भिलाई किड्स आर सेइंग, आई थिंक it's a bigger sample, ranks अपन अपनी तरफ से ठीक ठाक ला रहे हैं, तो that's a good representation of India, I would say. Right. So sir, काफी सीरियस बातें हो गई। एक अब थोड़ा सा एक नॉन सीरियस तो नहीं बोलना चाहिए, इट्स ऑफ कोर्स अ सीरियस थिंग, बट वी कैन परहैप्स स्माइल on this reflection back to our journey as mentors. What has been some good learnings and maybe a difficult phase, या phase तो नहीं बोलना चाहिए, a difficult experience as a mentor अगर आपको कभी experience हुआ, so I mean the good part and slightly जो कभी लगा होगा कि यार this is something that bothers me as a mentor, उसको अगर हम discuss कर सके तो maybe Priyanka ma'am you can start.
मेरे लिए पर्सनली तो आई थिंक जो मैंने कहा जो बच्चे कई बार डिजर्विंग होते भी हैं समहाउ दैट डे डजंट वर्क फॉर देम सो वो कई बार लगता है कि वी नो किड हैज वर्कड ओवर द एंटायर ईयर 2 years बच्चे ने काम किया है बस शायद वो दिन नहीं था उस बच्चे के फेवर में और बच्चे साइकोलॉजिकली अपने आप को एक ही एग्जाम से इतना जोड़ के रख लेते हैं though we entire year we say it's law is not equivalent to CLAT happens to be one of the pathways agreed that's one of the most important pathways but that's not the only way कि आपके लॉ लीगल करियर के रास्ते खत्म नहीं करता है बट कई बच्चों की साइकी ऐसी हो जाती है पेरेंट्स की साइकी ऐसी हो जाती है कि वो अपना सारा जो एक कह लीजिए जो भार है वो उसी पेपर पे रखते हैं जब वो चीजें वर्कआउट नहीं करती हैं तो एज मेंटर कई बार लगता है कि दिस किड डिजर्व्ड अ गुड कॉलेज देन उसके बाद उसको फिर से एक काइंड ऑफ कंसोल करके किसी दूसरी चीज के लिए तैयार करना बिकॉज वी डू नॉट वांट अ गुड किड कि वो किसी मीडियोकर कॉलेज में जाके अपने अपने कैलिबर के साथ जस्टिस ना कर पाए एक तो मुझे वो लगता है क्योंकि दैट्स वेयर आई थिंक द ट्रू मेंटरिंग कम्स इनटू द पिक्चर बिकॉज हम सिर्फ हाथ वहीं नहीं छोड़ देते कि एग्जाम खत्म हो गया और ठीक है हम हाथ वहां तक पकड़ना चाहते हैं कि जहां तक हम उसको लॉ स्कूल के दरवाजे तक छोड़ के आए जो हमें पता है ठीक लॉ स्कूल है वो बच्चे के कैलिबर के साथ जस्टिस करेगा तो आई थिंक वहां हद तक हमारा रोल है और वही हम निभाने की कोशिश करते हैं जैसा भी बच्चा हो उसके कैलिबर के हिसाब से हम एक ठीक कॉलेज में उसको पहुंचा पाए दैट्स व्हाट हैज बीन द मंत्रा ओवर द इयर्स एंड चैलेंज आल्सो प्रियंका मैम एक चीज ना मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस क्या होता है मेरे साथ ये बहुत बार हुआ आई एम श्योर आप लोगों के साथ भी हुआ होगा एक स्टूडेंट जो नॉट सो गुड कॉलेज से पढ़ के निकला हो और पढ़ के निकलने के 3-4 साल बाद जॉब में हो या कहीं पर हो और सडनली उसका कोई मैसेज आ जाए कि सर आई रिमेम्बर आपने ये करवाया था एंड बिकॉज यू नो सी अ टॉपर स्टूडेंट वो थैंक यू बोल चुका है बट एक ऐसा स्टूडेंट जो उस समय आपको थैंक यू नहीं बोल पाया बिकॉज उस समय उतनी अच्छी जगह नहीं हुआ वो बाद में अपने करियर में आगे बढ़ के जब बोलता है तो दैट फीलिंग इज सिंपली वाओ वाली फीलिंग फॉर मी आई एम श्योर आप लोगों के साथ भी वो हुआ होगा मनोज सर एनी इंसाइट्स ऑन गुड्स एंड चैलेंजेस और anything related to your mentoring? Yeah, I think biggest challenge which I always feel I face every year is the kids who do not get to. I think वो एक heartbreaking होता है कभी-कभी, and as Priyanka madam said rightly, there are a lot of deserving students for whom those 2 hours are not the ones. तो बड़ा हमारा भी दिल टूटता है honestly क्योंकि हमने बच्चे को देखा होता है, हमारे सामने मॉक स्कोर्स होते हैं, तो हमें पता होता है कि ये बच्चा निकाल सकता है, he has the caliber. काफी सारे बच्चे एक्सट्रीम स्ट्रेस आउट हो जाते हैं आई नो कपल ऑफ किड्स जो एग्जाम सेंटर पे रो पड़ते हैं राइट तो वो सारी चीजें ना मेरे को लगता है कि दीज आर द थिंग्स वेयर आवर रोल्स एज अ मेंटर एज ऑलमोस्ट लाइक द पेरेंट्स वी स्टैंड देयर मतलब मुझे आज अभी जो क्लैट का रिजल्ट आ गया एलेट का आ गया आई थिंक हाफ द डे गोज इन टॉकिंग टू स्टूडेंट्स एंड द पेरेंट्स कि भाई ऑल इज नॉट एंडेड अब आज स्लैट से पहले we motivated people to write SLAT, right? Day after tomorrow again we have SLAT. We have MHCET, a lot of things happening on this earth, right? And somehow I believe that जो बच्चा अच्छा कॉलेज डिजर्व करता है उसे वहाँ जाना चाहिए तो we want those kids to go there. We do not want to tell them to go to any random colleges because कहीं ना कहीं वहाँ भी influence आता है peer pressure का कि साल खराब नहीं होना चाहिए but it's not about year, it's about the college which these kids are aspiring, they worked hard, they toiled hard. And yes, since we over speak about CLAT, we keep only one exam in mind. तो कहीं ना कहीं getting them prepared for MHCTs exams like Maharashtra CT I'm talking about, SLAT is difficult. But yes, the kids eventually end up doing it because honestly उनके पास भी choice नहीं होती और हम motivate कर करके वहां तक पहुंचा ही देते हैं somehow मुझे लगता है. So Almighty's blessing we have been doing it. ग्वालियर में last year we had all India rank 20 from MHCET. It is outside Maharashtra. फिर भी 20 तक बच्चे लाए हैं ग्वालियर से. So I've seen those things happening, but I think all of this is only possible with due course of things beyond teaching, outside classroom thing. And this is where I think our role comes into picture. वहाँ पे आपका sustained interaction, even in fact parents भी demotivate हो जाते हैं. Parents भी बहुत external प्रेशराइज कभी-कभी करना चालू कर देते हैं उनको भी समझाना आवश्यक होता है कि भाई प्लीज रिलैक्स इट्स जस्ट एन एग्जाम एंड योर प्रेशर विल एक्चुअली इवेंचुअली ट्रबल द चाइल्ड so they are supposed to be friends
to the kids. So a lot of angles are involved there. So these are the challenges somehow. कई बार हमारा डिस्कशन 2 डिफरेंट एज ग्रुप्स के साथ चल रहा होता है। एक बच्चों के साथ कि उनको उनकी भाषा में समझाया जाए, एंड एक पेरेंट्स के साथ कि उनको एक डिफरेंट टैंजेंट पे समझाना पड़ता है कि ये भी आप कंसिडर कर सकते हो, ये आपके बच्चे के लिए अच्छा है। सो हम एक बिल्कुल मैम, 2 एक तीसरा डिफरेंट एंगल ये एज भी होता है, जब हम घर आते हैं तो हमें अपने बच्चों से भी डील करना होता है। हाँ, सही बात है। सर मतलब आपका तो पता नहीं, बट माय किड्स एक्यूज मी ऑफ बीइंग बायस्ड टुवर्ड्स माय स्टूडेंट्स, माय ओन हाँ, किड्स। सेम हो सेम सकता सेम हर घर में चल रहा है, ऐसा लग रहा आप उनको ज्यादा समय देते हो, आप हमेशा फोन पे रहते हो, एंड आई गेट टू हियर दैट, बट देन है। दैट्स है। आई गेट पार्ट टू ऑफ हियर, Same पापा age group. आपको तो बस क्लैट, आईपीएम, कैट यही सबसे मतलब है। माय माय हाँ। माय सन इज 8 year old, तो वो ऐसे ही बोलता है। हाँ। ठीक है। तो So वो that's भी that करते is हैं that is अपना। I mean that is of course one of the challenges of that. Right. So anything else that you would like to add? I think maybe a mentor mantra that you believe in. I personally, if I have to take it first. I believe that for a good mentor, it is very important to be empathetic. Empathy plays a very critical role. What according to you, अगर आपका कोई mantra या whatever you want to say as a mentor, what is the most important thing? I think it has to go beyond classroom. It has to go Yeah. deep inside his eyes and what is he feeling, because कभी के बच्चे expressive नहीं होते हैं. So yes, empathy, it has to go beyond classroom. कहीं ना कहीं we need to get the nerves of where this child is going, because competitive examination is not simple academics. इसमें बच्चों के emotions बहुत ups and downs आपको देखने को मिलेंगे. उस journey में वो कभी बहुत खुश भी होगा तो कभी बहुत रोएगा भी. You have to handhold him till the last day. I somehow believe that that's a very big responsibility we should have. Yes, sir. So I think in all we need to, apart from the subject teachers from academics, we need to be their friend, we need to be their philosopher, we need to be their guide, we need to be their agony aunts also. उनके टुकड़े भी सुनने होते हैं, उनके फ्रस्ट्रेशन भी सुनना होता है। घर में कोई उनकी बात नहीं सुन रहा है तो वो भी हमको सुननी होती है। तो आई थिंक बच्चे का बहुत इमोशनल रिलायंस हम पे आता है, and we need to live up to that expectation, and I think we have been doing that. Shayad probably that is the reason the students are so well connected with us in all 3 cities. So it's beyond the classrooms, it's beyond the walls. That is, I would say, it's mantra. I think it's a relationship for life. I believe in that. Very true, very true. Right. So thank you very much, Manoj sir, Priyanka ma'am, for connecting. And our purpose was simple to tell the side of mentor. Mentor के अंदर क्या चल रहा होता है. So all three of us are mentors, and all three of us have been doing this for a long time now. 15 years मेरा है, Manoj sir 15 years से ज़्यादा, Priyanka ma'am almost 20 years. So we have seen lot of things happening. If few key messages that I have to sum up. One, for the students, it is trust in your mentors. I mean, every mentor is by heart willing to do good for you, your well wisher. Trust karna important hai. For mentors, we have touched upon several aspects. It will be difficult to sum up in few things, but yeah, we need to be morally more responsible, more empathetic towards the students. Good and bad, both things happen. So we need to empathize with the student, understand their feeling. And yeah, of course, we discussed about the CLAT का जो issue होता है, which is beyond our control, but then we try to prepare students for those kind of surprises or shock, whatever you want to call them. So that is it from this side. थोड़ा सा अलग हमने कुछ करने की कोशिश की आज. So I hope you enjoyed this. Thank you. Yeah, absolutely. Thank you so much, Siddharth sir. Thank you so much, Thank you, Manoj sir. thank you so much, Priyanka. Take care.